endless carb यार, endless weight ना. I don't know how this muscle pass. It's very tough. गलती कर रहे थे वहाँ, मतलब बहुत बड़ा हम ब्लंडर कर रहे थे, आप ये समझो. And Sunday was one of the worst day for them yesterday. मैं लिख भी रहा हूँ कि we need to do something, we need to do something. कितनी बार मैं बोलूँ यार, मतलब. You know, I was onboarding one brand and we were hoping the commercial will be on the good side, and they didn't close me on the half commercial. They closed me on 30% commercial. March is extremely tough, guys, because I don't know why this is happening, but generally March are not that tough. But मैंने लिखा था, पढ़ो क्या लिखा है? Everything will be all right. 3 मार्च से आज 13 मार्च हो गई. कितने दिन हो गए? 10 दिन. कुछ ना कुछ फटे ही जा रहा है. And nothing to say. मतलब मैं क्या बोलूँ? This is another side of CEO. कुछ नहीं है Looks like this. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. What just happened generally does not happen. I'll tell you why. So I was onboarding one brand and we were hoping the commercial will be on the good side, and they didn't close me on the half commercial. They closed me on 30% commercials. If my expectation was 10 rupees, they closed us at 3 rupees. He knew that, I have to work with him, and then and then I'm just blank, guys. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीटिंग थी, मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया मीटिंग ऑब्वियसली बिकॉज कमर्शियल डिस्कस हो रहे थे. बट आई वॉज लाइक इन अ डिलेमा कि नाउ द गाय विल ब्रेक, नाउ द गाय विल ब्रेक, नाउ द गाय विल ब्रेक. He was not breaking. He was so clear about the discussion. Loved it. So the way he approached the discussion was amazing. क्योंकि he didn't broke यार. He was so clear. He literally said to me कि I was assuming this was a 10-minute discussion because these are the final numbers. Just because you are so emphasizing, I'm increasing it by 10%, nothing more. And मैंने बात करी कि it's too less for me, it doesn't excite me, and everything. But what he said, I said कि I can say yes, but the number doesn't excite me. तो यहीं पे अगर मैं होता ना तो I would have given a number to other person that would have excited them, because that's how I approach. Because I'm a blue, and I'm a blue and a green. He was a true gold. He said, Arjun, the number should not even excite you, because today we are in such a bad situation. I cannot give you a number that excites you. Perform in a way that it actually excites both of us. And he literally said, Arjun, right now I was talking to industry, one of the biggest firms, but the only reason I'm betting on you is I like the enthusiasm you had, and the way you presented the data was amazing. So many mixed emotion. I'm so happy, because he took the name of 3 legacy agencies that are in India, and he said, Arjun, तीनों से मीटिंग हुई, फाउंडर से मीटिंग हुई, सब बहुत बढ़िया था, but there is something that was there in your meetings that pulled us to you. But again, commercials बहुत अच्छे नहीं थे. तो आपके पास 245 आ गया. अब आपका ये जो चीज, आप जो प्रोडक्ट बेचते हो, इंक्लूसिव टैक्स बेचते हो ना, रिटेल की आइटम. हाँ, अभी तो उस पर GST हमें जो सरकार को देनी पड़ेगी. आप GST किस पे दोगे? आप 1600 पे दोगे ना डिलीवरी में? 1600 पे देंगे. हाँ, जो 18% दोगे. करेक्ट. अब 1600 इंटू 18% करके निकाल रहे हो, कितना बनता है? 288 बनता है. तो आप पर प्रोडक्ट पे कितना लॉस खा गए आप पे? 43 रुपीज का लॉस है हर ऑर्डर पे. 100% कभी टैक्स रिफंड आता ही नहीं. नहीं आएगा नहीं भाई, आपको तो टैक्स रिफंड आ ही नहीं सकता. आ ही नहीं सकता. ठीक है जी, हमने कोई जुगाड़ करके, हमारी थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग भी अंदर, हम कर के 20-30-40% का निकाल के ले. बाकी 50-60% तो वेस्ट हो गया ना. वो तो मैं अपनी सेल में सिर्फ क्लैश करूंगा, वो भी तब मैं उसको सेटल कर पाऊंगा जब मैं लॉस शो करूंगा. प्रॉफिट शो करूंगा वो भी नहीं होगा. तो मैं अब इस प्रोडक्ट में से अगर मेरे को फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ तो मेरे को 20% EBITDA के नीचे काम ही नहीं करना, तो ये एवरेज प्रोडक्ट की ROI निकलती है 2.6-2.7. समझ गए? अब मैं उसके नीचे तो मैं लॉस मेकिंग कर रहा हूँ. दिक्कत ये आ रही है जो 1000 का क्या वो बहुत ज़्यादा है. तो दिक्कत ये है, हमारा कल ओवरऑल रॉस खराब था. इसलिए भी खराब था ना, ऑफर नहीं चल रहे थे ना हमारे.
हाँ कल तो हम बोल के हम कुछ और भेज रहे हैं। मतलब कि हाँ कल तो वो बहुत हुआ होगा। प्लस जब हमने बोला था कि साइड वाइड करना है, करेक्ट। तो साइड वाइड तो हुआ ही नहीं। दिक्कत ही नहीं है, हमने बोला ऑफर है, लोगों ने कहा बाय टू गेट वन है, लोग चेकआउट पे जा जाके बाय टू गेट वन मार रहे हैं। I don't know how this is going to get better, Rajaf. मतलब the strategy what you're saying is obviously hypothetical, only if it gets better. But like with this ROAS, I don't think we'll be able to continue, paying the fees and spend on ads also, because it's really hurting our business. I know the back end, I know the cash flow that I have right now. So I have to be very honest with you, founder to founder, right? तो ये मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। तो एक काम कर सकते हैं, राइट, ये मार्च के महीने के लिए why don't we try this model where the agency can work for Google Ads for us. Let's just do Google Ads, and we'd like to test getting involved in Meta ourselves in running the ads, and we'll take control of that. Because I feel like वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता का टेस्ट is not enough. एक बार खुद से हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, maybe we don't know what the problem is, right? Like same as you. So I think we need a month to figure that out. Go into our own ad account, handle things ourselves, and then maybe we can realign again end of March and take a call if we want to do Meta plus Google with the agency or just Google Ads. वो कर सकते हैं ठीक। See, not a problem at all. You guys can take that decision. That's never a problem. ठीक है बॉस। मैं लिख भी रहा हूँ कि we need to do something. कितनी बार मैं बोलूँ यार, मतलब आप अगर मेरी जगह पे होते तो आप कितनी बार बोलते इसको? Then you have to start taking actions, which is what I did. I switched off checks and jumper. मैंने अभी 6 तारीख को वो ads में भी चेंज किया हुआ है. No one has even come back. नहीं वो टीम में को बोलती भी है of course. I don't know whether I'm not expecting you to see every account and every campaign level पे जाके सब कुछ देखना. It's not humanly possible for you to do all of that. And the account manager is also not doing it. It is my duty as a client to tell you that this is not happening. बट देखो 2 ways है, आपकी बात भी मैंने पूरी सुनी है एंड आई ऑल्सो एग्री विद इट, बट इट्स अ 2 way थिंग। मतलब आई हैव सीन ऑन द ग्रुप्स ऑल्सो, द टीम चेंजेस समथिंग, then वी ऑल्सो मेंशन कि डू नॉट चेंज इट एंड आई हैव डन दिस, एंड ऑफ कोर्स यू विल डू इट, एंड सेकेंडली लाइक एज आई हैव शोन यू, मतलब हम दोनों ही लास्ट मीटिंग में भी एग्री कर रहे थे ना कि द बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग, राइट, एंड हमने ये भी डिस्कस किया था कि देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ रोआस। अगर हमने पिछले एवरेजली 7-8 महीने में कभी भी 400 ऊपर का रोआस नहीं लाया, तो हाउ कैन आई स्केल ऑन अ 5.5 का रोआस, जो हमारा लास्ट टाइम कॉन्वर्सेशन हुआ। But that is your USP that you bring to the table. No, बट एक डिफरेंस That is not my USP to bring to the दैट्स अ प्रोडक्ट यूएसपी। नहीं मैं पहले कर चुका हूं, ऐसा नहीं है कि साल हमने पुरानी कभी बात है, देखा नहीं हुआ इट्स अ 3-year-old story. Sorry? It's a very old story. It's a very long back then that ROAS existed, right? You were also running the campaign when the ROAS was not coming when you came to us. मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैं तो आपके पास आया था क्योंकि मुझे USP है. So let's do one thing. Let me sit once. मैं आज शाम को ही एक बार आपसे कॉल करता हूँ, मैं एक बार इमीडिएटली टीम के साथ बैठता हूँ, what has been the biggest challenges, and I'll be very candid with you of course in that conversation. ठीक है? Yeah. Done. ठीक है. 100%. आप बस मुझे शाम तक का टाइम दे, I'll give you a call. Okay? Okay. Yeah. Sure. Thanks. Chillax. See, I know how the business, how the brand owner is, so it doesn't changes anything for you. होगा। I have nothing to say. मतलब मैं क्या बोलूँ? This is another side of CEO. कुछ नहीं है मेरे Looks पास। like this. ये ब्रांड आएगा, उसे डाउनलोड करना है, बैठा हुआ है, सिद्धांत से बात नहीं हुई है, शाम को एक कंसल्टेशन लेनी है, अभी 2 इंटरव्यूज पेंडिंग है, तुम्हारे को 2 रिकॉर्डिंग्स देनी है। यार टाइम ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। फ्रेंड ने बताया देखो, ये मैंने लिखा था, पढ़ो क्या लिखा है। Everything will be all right. 3 मार्च से आज 13 मार्च हो गई, कितने दिन हो गए? 10 दिन। लो गाइस देखो, 3 मार्च को लिखा था ये, अभी तक सही नहीं हो रहा, पता है, कुछ ना कुछ फटे ही जा रहा है। क्या गलत कर रहे हैं हम?
यार दिमाग नहीं चल रहा यार प्रेरणा, बहुत ही ख़राब दिन, पूरा हफ्ता ऐसे ही है। क्या बोलूँ? अब बताओ ना, जो सारी चीजें हो रही है। नथिंग टू से, क्या बोलूँ मैं? एक हफ्ते से चीजें खराब चल रही है, कुछ फेवर में नहीं चल रहा, ना क्लाइंट की परफॉर्मेंस ना हमारा कुछ। हमारी वीडियो कितनी डाउन चली गई बताओ? हाँ ये भी बता सकते हो आप। ये अलग दुख है। शेयरिंग योर और जर्नी। पता नहीं मैंने सबसे कितने लोगों को डांटा है, बताया चिड़चिड़ा से ही रहता हूँ आज कि पूरा हफ्ता, नॉट आज। वो क्या ना, सबका इफेक्ट तो वो उस पर आएगा ही ना। क्या बोलूँ? हाँ मैं एग्जैक्टली। आज मैं छुट्टी लेना चाहता था, पता है, इतने मन से सच में। मतलब मैं बहुत थका हुआ था, मैंने क्या बताऊँ, ज़्यादा था जो घर से काम कर लूँ। अब जस्ट स्कैर्ड टू कम टू ऑफिस। चीजें ना फट जाए इसलिए। फटनी थी ना, पता नहीं लोग 40-50 साल एजेंसी कैसे चला रहे हैं भाई। तो वही फाउंडर से तो गंजे हो जाते हो, मैं सच बताऊँ, गंजे। सफ़ेद बाल भी नहीं, गंजे। हाँ यार, सोचो प्रेरणा, 50 ब्रांड, 90 लोग, कितने हो गए लोग? 140 बंदा हो गया। अब कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ फट ही रहेगा यार। और 140 लोग किसका अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सच में भाई। और अभी तो वो भी है हर मंथली वो एनुअल मीटिंग, मैं ना तुम्हारे साथ बैठा हूँ, और मैं क्या, कोई भी नहीं बैठा होगा यार, क्योंकि टाइम है क्या, एंडलेस काम है यार, एंडलेस प्रेरणा। आई डोंट नो हाउ दिस मंथ विल पास, इट्स वेरी टफ। टेक टीम हायर नहीं हो रही है वो यार। पता है प्रेरणा, कल 2 ब्रांड डिबोर्ड हुए, आज सुबह एक ब्रांड को हमने डिबोर्ड किया। अभी इस कॉल पे जिसमें मैं था, उसमें ब्रांड ने साफ बोल दिया कि इफ डजंट इम्प्रूव वी हैव टू पार्ट वेज इन 1 or 2 months। चौथा ब्रांड डिवोर्ड हो रहा है। तो हैवी बोला है। हाँ बोला है, हैप्पीएस्ट क्लाइंट था ये तो एक टाइम का। हैप्पीएस्ट क्लाइंट, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं सो, और पता है क्या प्रॉब्लम, आपने देखा होगा इस हफ्ते मैं कैबिन से बाहर निकला, काम तो छोड़ो, मैं हेलो तक करने नहीं आ रहा हूँ लोगों से। मैंने सुबह, याद है ना, मैं पहले आधा घंटे डोलता था, वो कर रहा हूँ अभी। मैं आती ही सुबह से ही बैठा रहता हूँ यार। मंडे से यही चल रहा है, फ्राइडे आ गया। और सोचो कंटेंट कहाँ निकाला है, वो तो गलती से मैंने कंटेंट दे दिया तुमको सुबह। क्या है ना, ब्रांड फटे होते हैं ना, तो अब वो चीज़ वैसे सॉल्व हो जाती है टीम। अब मैं इन सबकी मीटिंग में जा रहा हूँ, फिर इनके प्लान बनाऊंगा, फिर कल पिच होंगे, पता नहीं क्या क्या यार, बहुत परेशानी वाली बात है। वर्स्ट वीक। और हमारे फाइनेंशियल ईयर्स के वो है, वो तो गोल्स, वो जो टारगेट्स थे, उसके तो बात ही उनके उसके तो लंगर लगी हुई है। ऑब्वियसली जब ब्रांड अच्छे नहीं चलेंगे तो हमारे फाइनेंशियल भी अच्छे होंगे ना। सो वी आर अ बुटीक एजेंसी ब्रांड ना, वी आर नॉट अ हायर एंड फायर एजेंसी की। अच्छा जी ने मना कर दिया, कल एक नया क्लाइंट लिया, उनको मना कर दो, वो हमारा वो नहीं है ना। दिस इज नॉट अस। सो गाइस, अभी जस्ट मैं अंदर से होकर आई, कंटेंट शूट करने के लिए बैठे थे, बट आज जब सर का शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी है ना कि उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा, अपने वो कैबिन से बाहर ही नहीं आया मंडे से। एंड सो मेनी ऑफ यू लुक फॉरवर्ड टू आवर संडे वीडियोस, लेकिन कुछ था ही नहीं। एंड आई थिंक आज की वीडियो से यही लर्निंग मिलती है कि दिस इज़ अनदर साइड ऑफ CEO, कि इतने डेज हम हमेशा पॉजिटिव एंड शेयरिंग होते हैं, बट दिस इज़ दैट वन लो डे जब आपको बहुत चीज़ें सिखा जाता है वो। एंड मुझे ना यही कॉन्सेप्ट याद आ रहा था साइमन का, कि लीडर्स ऑलवेज ईट लास्ट, एंड आर्जव सर इज अ great example of that, because he always nurtures his team first and he always prioritizes work a lot so that Team Unfiltered stays so positive and so focused and dedicated always and always. So thanks to him. तो सर मैं तुमको एक बढ़िया लर्निंग देता हूँ जो हमने कल सीखी। थोड़ा सा मुझे इस पर ना वर्किंग चाहिए, थोड़ा सा ना वो है, क्रिटिकल चल रहा है, और इतना क्रिटिकल चल रहा है कि ना थोड़ा जाने टाइप्स नौबत है। अभी नहीं है बट आ सकती है। मतलब एक बहुत बड़ा गैप समझना ऑफ आज एप्पल ऑफिस आया हुआ था, तो उसने चीज़, मैंने उसको ये इमेज दिखाई, कहते कि आप भी आज वही गलती कर रहे हो जो हमारी करंट एजेंसी कर रही है। तो कल को मैं ऐसे ही दिखा रहा था, तो उसने कहा अर्जुन पता आपकी उसमें गलती है, एक क्रिएटिव लग रहा है, क्रिएटिव नहीं लगना चाहिए। इट शुड लुक लाइक अ रैंडम पिक टेकन फ्रॉम अ रैंडम डे, लाइक दिस इज लिटरली एन एआई इमेज। और रैंडम क्लिक्स के ऊपर एडिटिंग है ही नहीं भाई,
सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, दैट्स ऑल। तो मुझे लगता है ना ये हमें गलती कर रहे हैं इस समय, इज वी आर मेकिंग इट लुक लाइक अ क्रिएटिव। अब जैसे ये देखिए बिल्कुल बहुत रियल लग रहा है कि ही इज़ हैविंग अ पिज़्ज़ा एंड एवरीथिंग, राइट, बट और ये खुद फाउंडर करता है, कहता है कि यार मेरी कोई क्रिएटिव टीम आज तक नहीं कर पाई, मेरा कोई एजेंसी नहीं कर पाया, करंट एजेंसी भी नहीं कर पा रही, कहते दिस इज समथिंग जस्ट ओनली आई डू। तो मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग, ठीक ना। So let's not create a creative, let's make random pics doing random things, ठीक है। So मैं आपको एग्जीक्यूशनली बता रहा हूँ भी क्या करना है हमें। Yesterday was extremely bad day. So one of my favorite brands and one of my brand where I have spent the most of the time is not growing, and एक महीना हो चुका है। तो we had a very tough conversation. They said कि if RZA does not improve, maybe not this month, next month, but then they may have to take an action, and this is extremely bad for us. Not because ये हमें बहुत ज़्यादा financially hit करेगा या फिर something like that, but ये हमें ना challenges लेने से ना रोकेगा, because if there is a case study in front of us, we have to solve it, and when we solve it, that's what makes us the best D2C marketers in the market. I'm sure you must have listened to that entire conversation, how to deal with the brand side, how to actually work on the marketing, because see, the idea of this video was not to tell you कि brand से कैसे deal करना है या फिर something, no, it's not like that. It's actually true marketing. You have to be a true marketer, you have to figure out the problems, work on it, get it solved, and cherry on the top, उसको ब्रांड को कैसे दिखाना है, वो कैसे बेटर कर सकते हैं, that is a second aspect. तो ये चीज़ है। तो yeah, March is extremely tough guys, because I don't know why this is happening, but generally March are not that tough, but yeah, it's tough. Okay guys, so it's 9 AM in the morning. Why I'm coming early today is because, especially to make this video, because the day has been so active. I'll tell you a raw founder POV where I'm sitting right now. तो सबसे पहले भी हमने अंडरनीट और नॉट को ऑनबोर्ड किया। दोनों के दोनों जब ऑनबोर्डिंग हुई, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था कि दे वांट मी टू बी द प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड आई एम। तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। दो हमारे करंट बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड स्केल नहीं कर पा रहे और उल्टा नंबर्स डाउन जा रहे हैं ड्रास्टिकली, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर फाइटिंग चल रही है। 3 महीने से द रेवेन्यू ऑफ आर बिजनेस, हमारे बिजनेस का रेवेन्यू इज गोइंग डाउन, बिकॉज हमारे ब्रांड्स का रेवेन्यू भी डाउन जा रहा है। एंड पहली बार है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी ब्रांड्स के लिए बैक टू बैक हिट आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स वो हिट हमारे नंबर्स पे भी आएगा। अनदर बिग इशू, सो क्लाइंट साइड प्रॉब्लम है, रेवेन्यू साइड प्रॉब्लम है, टीम साइड पे भी चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि हमें ना अपस्किलिंग पे बहुत काम करना है। सो इफ़ यू आर मैनेजिंग अ टीम, आई एम श्योर एक चीज़ ना, जब आप किसी भी टीम के फीडबैक में बैठेंगे ज़रूर मिलता होगा कि वी आर नॉट एबल टू लर्न न्यू थिंग्स, वी फील स्टक। और मैं भी जब इंटरव्यूज़ लेता हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा मैं सुनता हूँ। एंड अभी रिसेंटली हमने अपने टीम का कनेक्ट कराया था, कनेक्ट हम ऑफिस में इंटरनली इसको कनेक्ट बोलते हैं, फीडबैक रिव्यूज़ को। तो उस पर भी ये चीज़ बहुत डोमिनेंटली हमारे सामने आई। तो टीम साइड पे ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। प्लस हर साल हम लोग एक एनुअल मीटिंग कराते हैं जिसमें हम पूरे साल में हम लोग इवेंचुअली क्या प्लान आउट करने वाले हैं, क्या चीज़ें हम लोग चेंजेस लेके आने वाले हैं, कौन सी पॉलिसीज में चेंजेस लेके आने वाले हैं, हमारी HR स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, हमारी सेल्स स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, हमारी रिटेंशन स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, हर चीज़ डिस्कस करते हैं। तो इस बार हम लोग 15 पीपल आर गोइंग विद अस, एंड मैं उस पर भी बहुत डिटेल वीडियो डालूंगा वंस विल डू इट। 28 मार्च को हमारी वो मीटिंग है। तो अब मुझे सभी टीम्स के साथ इंडिविजुअली पहले बैठना है, डिस्कस करना है, प्रॉब्लम्स उन सॉल्यूशंस को डिस्कस करना है, उन डायरेक्शंस को डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये हो गया वन साइड। इसके बाद आते हैं हायरिंग्स पे। इंटर्न हायरिंग हैज़ बीन अ वेरी बिग इशू फॉर अस रिलेटली। वाई? बिकॉज हमारे यहाँ इंटर्नशिप सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में होती है। उसके बाद ऑफिस में होने के बाद 3 मंथ्स का इंटर्नशिप होता है, फिर उसके बाद 3 मंथ्स के बाद एक्सटेंशन होता है 3 मंथ्स के इंटर्नशिप का। इंटर्न्स बहुत सारे होते हैं, देयर आर मोर देन 15 इंटर्न्स दैट वी नीड एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। ये इंटर्न साइड हो गया। अब आते हैं कंटेंट पे जो भी हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। सी चैलेंज बस ये है कि ना, जितना बैंडविड्थ इसमें जा रहा है
it's extremely high, and you know we have to be highly motivated to keep on doing this, which we are of course, and but this is taking a lot of the bandwidth of the team as well as mine. Now next important thing is tech. I'm sure अगर आप हमें 3 महीने से फॉलो कर रहे हैं, मैं टेक का वीडियो भी अटैच कर दूंगा इन द पिन कमेंट. सो जो टेक है ना, नाउ द प्रॉब्लम इज ना कि इट्स बिन 3 months, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट हैपनिंग ऑन द टेक एंड वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 50 lakhs ओवर देयर. तो अभी हम टीम फिगर आउट कर रहे हैं, वो टीम्स वी जस्ट अबाउट टू क्लोज इट, बट स्टिल इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. सो या there is a lot of problems that we are sitting on right now and we are trying to solve it. But you know अभी मैं दिखाता हूँ आपको. I do not know पेपर होगा नहीं होगा. मैं see. So होता क्या है ना, why I'm making this video is to tell you the approach when you know so many problems happens across, how to solve is because you know it's been 4 years I'm running this business and ये हर साल होता है. हर साल ना 1-2 महीने ऐसे आते हैं जहाँ पे ना हर चीज़ ही गलत हो रही होती है एंड हर चीज़ में चैलेंजेस आ रहे होते हैं, अदरवाइज कुछ कुछ चीज़ें स्मूथली भी हो जाती हैं. बट आफ्टर 2 months मैंने लुक एट इट, यू नो थिंग्स गेट सॉल्व, है ना. कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं भी हो पाती हैं, बट इवेंचुअली एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट. तो अभी एक दिन था, ये मैंने लिखा था 3 March को, ठीक है. उसमें लिखा है एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. तो इम्पॉर्टेंट इज अप्रोच, ठीक है, एंड यू हैव टू कीप ऑन गोइंग विद इट. एंड द ओनली थिंग इज यू हैव टू वर्क हार्ड. दैट इज द ओनली सॉल्व फॉर इट. ऐसा नहीं होगा कि यू नो द बॉन्ड विल बी देयर एंड आप चलाओगे और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो आपको अपना एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा. यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू पेन डाउन थिंग्स, यू हैव टू सॉल्व ईच प्रॉब्लम एट अ टाइम. एंड अगेन गाइज द अप्रोच हैज़ टू बी हाईली पॉजिटिव. अब ऑनेस्टली लास्ट 4 दिनों में ना आई एम बीइंग सो, राइट वर्ड मस्ट बी क्रैंकी बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स. मैं भी टीम को कभी कभी फालतू में डांट दे रहा हूँ, विच इज़ नॉट राइट एंड दिस इज आइडली शुड नॉट हैपन. तो yesterday I sat with few people and said कि guys I'm sorry, मुझे नहीं करना चाहिए, I should not use those words. तो because it happens. तो yeah, मतलब like if you are listening to this and you may be the client, maybe the founder, maybe the team, so I think the choice of words is extremely important and you are the one who you know enlightens the team. So you cannot be the spoiled brat in the office. You are the one who has to still take the team together. So this is the one side. Now I'll tell you how we are even solving this. तो yesterday I took a time, मेरी कोई ब्रांड मीटिंग्स नहीं रही. कल मैंने सारी टीम के साथ बैठ के अपने मार्च वाले डिस्कशंस क्लोज करे. 2 ब्रांड जो हमारे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, उनके साथ हर दिन मेरी हाफ एन आवर की कॉल हो रही है, जिससे कि सी आउटपुट आना इज़ वन थिंग बट द ब्रांड शुड बी अवेयर दैट यस टीम इज टेकिंग एडवर्स एक्शन. इस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन, कि हाउ वी आर डीलिंग विद दैट वन ब्रांड. प्लस अगर मैं बात करता हूँ नए ब्रांड्स की, तो आई हैव अलाइंड वेरी स्ट्रॉन्ग टीम फॉर बोथ द ब्रांड्स. प्लस उस पर भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है एंड वी आर मेकिंग श्योर कि हम उन ब्रांड्स को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करें. एंड गाइज आई टेल यू, इस साल जो हमने एनुअल मीटिंग रखी है, अगर आप इस पेपर पे देखेंगे, मैं आई एम इन अ हैबिट ऑफ यू नो राइटिंग अ लॉट, तो एजेंसी के नीचे लिखा हुआ है कंसल्टेटिव लीडरशिप. तो इस साल हम लोग अपनी टीम के लिए भी जो हमने एजेंडा लिया है इज़ नॉट हाइपर ग्रोथ हमने लास्ट ईयर करी है, इज़ अबाउट कंसल्टेटिव लीडरशिप. कंसल्टेटिव माने, सो आई टेल यू होता क्या अभी, वेन एवर अ ब्रांड कम्स, यू नो, because of Arjav's bandwidth, because of my bandwidth, we are not able to onboard brands. Why? Because brand आ रहा है, उसको Arjav का टाइम चाहिए, Arjav लिमिटेड ब्रांड्स पे काम कर सकता है, टीम के पास टाइम है, उसके बावजूद भी हम ब्रांड्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते. एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट, बिकॉज कंसल्टेटिव बिहेवियर इज समथिंग दैट आई वॉन्ट द टीम टू अब्जॉर्ब. वी आर नॉट जस्ट एन एजेंसी, हम सिर्फ ऐड नहीं चलाते, हम कंसल्ट करते हैं. तो इस साल हम अपनी टीम को इतना अपस्किल करना चाहते हैं कि अगर वो मेरे से बात कर रहे हैं, टीम से बात कर रहे हैं, दे शुड नॉट फील दैट गैप ऑफ अ परफॉर्मेंस एजेंसी एंड कंसल्टेशन इन D2C, जो आज थोड़ा बहुत होता है. तो दिस इज वन. एंड सेकेंड, आपने वर्ड सुना लीडरशिप. लीडरशिप इज फॉर द टीम. बी द लीडर दैट यू विश यू हैड. सो वन इज़ क्लाइंट साइड, वन इज़ टीम साइड. तो हम अपनी टीम को बहुत ज़्यादा अपस्किल करना चाहते हैं ऑन दीज 2 साइड, कंसल्टेटिव लीडरशिप. एंड यही हमारे इस साल का विजन और एजेंडा होने वाला है. और मार्च की जो हमने मीटिंग रखी है, सभी टीम्स को इसी एजेंडा पे इवेंचुअली वर्क करना है. तो इस साल हम लोग इस एजेंडा को फॉलो करेंगे, बिकॉज सी
Morgan Stanleys and JP Morgans of the world, right? I'm sure they also started as a basic agency, right? But today they work at a crazy consultation level. So consultation is the way to go forward, and this is what we also want. We just don't want to be an agency जो ad चलाती है. That's not us. We want to be the one which actually adds value to the brands. So yeah, this is what we have been working on. बाकी जितने भी चीज़ें हैं, I have just noted it down. I just keep on working that 1% improvement on each project day on day, so we can close them and we can get the things better. So yeah, this is how agency March look like, and this is what the problems that we have been coming across. इसके अलावा one thing that I have been really using right now is the peace of mind, because peace of mind is extremely important. And if you ask me what I do for my peace of mind, one is for sure I visit temple every day in the morning. कुछ दिन मिस हो जाता है, but yeah, majority of the times I make sure I do that. Reason being कि you get a sense of calm, you get a sense of energy when you go there. That's one. Second is noting down problems, because 50% of the problem is solved when you pen it down, right? And then of course solving is a different task altogether, but yeah, that is also extremely important. So yeah, so this is how we have been tackling, and this is how our agency's March look like and how we are solving it. So yeah, I'll keep you posted on how things have been happening around the agency and how we are trying to solve it. So I hope you like the video, and it was very tough one. So yeah, thank you for watching the video till the end. Take care, have a nice day. Tata, bye bye.